morning to my dear students. Welcome back to Atme Green School, Jai Swami Narayan. Today class 8th, book History, and it is a continuation of chapter 7, Civilizing the Native and Educating the Nation. We are supposed to continue from page number 86. That is the demand for moral education. The argument for practical education was strongly criticized by the Christian missionaries in India in the 19th century. The missionaries felt that education should attempt to improve the moral character of the people. Students, I have told you कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन रखा था to make the uncivilized into civilized people. That is, Indians जो uncivilized थे उनको civilized बनाना था. Okay, काफ़ी protest हुआ and they decided कि English education यहाँ start होना चाहिए है. That is, under 1813, the East India Company was opposed to missionary activities in India. It feared that missionary activities would provoke reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence in India. Missionaries, mission, yani, dekho, you can see this. William Carey was a Scottish missionary who had established the Serampore mission. मतलब ये एक ऐसी एडुकेशन है कि आप मतलब कोई मिशन है कि हमारा मिशन, जैसे बहुत साल बाद गांधी जी ने ये मिशन लिया था कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल के रहेंगे. सो इस तरीके से मिशनरी एक एक्टिविटी होती है. सो ब्रिटिशर्स को यही डर था कि अगर ये एक्टिविटी हुई तो फिर उनको पता चल जाएगा हमारी ब्रिटिशर्स की क्या प्रेजेंस है इंडिया में, वो किस लिए आए हैं, वो उनका क्या मकसद है, वो क्या चाहते हैं. और ब्रिटिशर्स चाहते थे ये पता नहीं चले उन्हें. Unable to establish an institution within British controlled territories, the missionaries set up a mission at Serampore in an area under the control of the Danish East India Company. A printing press was set up in 1800 and a college established in 1880. Over the 19th century, missionary schools were set up all over India. After 1857, however, the British government in India was reluctant to directly support missionary education. There was a feeling that any strong attack on local customs, practice, beliefs and religious ideas might enrage native opinion. मतलब ब्रिटिशर्स का यही था ना कि अनसिविलाइज्ड पीपल को सिविलाइज्ड करना, और उसके लिए उन्होंने ये न्यू एजुकेशन इंसेप्ट करने का सोचा था. तो कुछ लोग कहते थे कि अगर आप डायरेक्टली ऐसे इंडियंस पे अटैक करोगे, उनकी बिलीफ, कस्टम, रिचुअल्स, उनके प्रैक्टिसेस, कस्टम को एकदम से बदलने की कोशिश करोगे तो लोग उल्टा एनरेज हो जाएंगे, है ना, और वो फिर ब्रिटिशर्स के ज़्यादा खिलाफ हो जाएंगे. ओके, सो उनके दायरे में रह के ही उन्हें सिखाना है. Right? So that was the demand for the moral education. You can see Serampore College on the banks of the river Hooghly near Calcutta. Serampore College. Then you can see on page number 87, see the pic on the right hand side, a village पाठशाला. पहले पाठशाला बोलते थे ना स्कूल को, पाठशाला. This is a painting by a Dutch painter, Francois Solvin, who came to India in the late 18th century. He tried to depict the everyday life of people in his paintings. Every day, day to day, उनकी life कैसे थी, उसको इस पिक्चर में कैप्चर किया उन्होंने, पेंटिंग की है, कैप्चर किया है इस पेंटिंग में. डच पेंटर फ्रैंकोइस सॉल्विन. What happened to the local schools? Do you have any idea of how children were taught in pre-British times?
जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो वो टाइम कैसा था? स्कूल्स, हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स? और अगर हाँ तो व्हाट हैपेंड टू दीज? फिर ब्रिटिश रूल में इन स्कूल्स का क्या हुआ? द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. In the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the districts of Bengal and Bihar. उन्होंने एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्होंने एक टूरिंग की बंगाल और बिहार की. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced is interesting. Adam found that there was over 1 lakh pathshalas in Bengal and Bihar. These were small institutions with no more than 20 students each. पहले तो टाइम में यही था. But the total number of children being taught in these pathshalas were over 20 lakh total Bihar और Bengal के. These institutions were set up by wealthy people or the local community. At times they were started by a teacher, guru. पहले गुरुजी कहा करते थे वो लोग. ये तो टीचर वगैरह ये सब इंग्लिश वर्ड्स बाद में आए, जब इंग्लिश एजुकेशन हमारे में इंडिया में आए. और सच इंग्लिश वर्ड, सॉरी, थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सब बाद में आए थे. The system of education was flexible. Few things that you associate with schools today were present in the pathshalas at that time. Okay, मतलब कुछ चीज़ें जो आज भी स्कूल्स में हैं कुछ कॉमन थी वो पाठशाला से. There was no fixed fee, no printed books, no separate school buildings. Okay, उस वक्त कोई फी फिक्स नहीं थी. जो आ गया जितना पैसा दे दिया पढ़ा लिया. 6 महीने पढ़ना है, साल पढ़ना है, कोई कुछ नहीं, कोई बुक्स नहीं थी, कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं थी. जहाँ जगह मिले, जहाँ लगे कि हाँ चलो यहाँ बैठ के पढ़ लिया. No system of separate classes, no roll call registers, no annual examinations, no कुछ नहीं था. सिर्फ बस आए बच्चे पढ़ लिया 1 घंटा 2 घंटा, चलो बस हो गया, चलो खत्म. So in some places classes were held under a banyan tree. In other places in the corner of the village shop or temple or at guru's home. Fee dependent on the income of parents. Okay, जैसे पेरेंट्स की इनकम थी उस हिसाब से फीस थी कि अच्छा कमा रहे थे तो वो फीस देते थे, नहीं तो नहीं सी. The rich had to pay more than the poor. टीचिंग वॉज ओरली था, कुछ रिटर्न नहीं. एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच. ओरली था और बस गुरु डिसाइड करते थे क्या पढ़ाना है और बच्चों ने सुन लिया या बस. इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स जो स्टूडेंट ने लगे कि अभी बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो पढ़ाते थे. स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इन डिफरेंट क्लासेस. ऑल ऑफ देम सैट टुगेदर इन वन प्लेस. मतलब जैसे आज है, आज का टाइम तो खैर, बट पहले भी मतलब कोई क्लास नहीं, सभी को एक जैसे, छोटा हो बड़ा हो सब एक की पढ़ाई. द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग. जैसे ये बच्चे थोड़े बड़े हैं तो इनका ग्रुप यहाँ बना लिया, छोटे बच्चे तो इनका ग्रुप यहाँ बना लिया, कुछ अगर एल्डर्स पढ़ने आए तो उनका ग्रुप यहाँ बना के वो सिखाते थे. Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. मतलब जो लोकल पीपल थे उनके लिए तो ये एकदम सुटेबल था. ओके, दैट इज द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड. जब भी फसलें कट जाती थी, स्टोर होती थी, बच्चे सब फ्री हो जाते थे ना, सभी लोग फ्री हो जाते थे, तब ये पाठशाला ओपन होती थी. जब भी एग्रीकल्चर का काम काज होता था फिर पाठशाला नहीं होती थी, तो कोई आता ही नहीं था, सब उस एग्रीकल्चर में बिजी हो जाते थे. This meant that even children of peasant families could study. यानी इसका मतलब है कि फार्मर के बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते थे, कोई भेदभाव नहीं था. नो कास्ट एंड क्रीड, नथिंग. सो जैसे ही गांव पूरा फ्री हो जाता था, थोड़ा बहुत अपने फसलों से कट के स्टोर होके और उनको पैसा मिलना, फिर उन्होंने पढ़ाई पाठशाला शुरू कर देना. जब उन्होंने किसी काम में कोई उस पर फिक्स बिजी हो जाना, देन स्टॉप्ड.
फिर पाठशाला बंद। Then new routines and new rules. See on page number 88. Imagine you were born in a poor family in the 1850s. How would you have responded to the coming of the new system of government regulated pathshalas? Did you know that about 50% of the children going to primary school drop out of school by the time they are 13 or 14? क्यों? क्योंकि वो बड़े हो जाते थे तो पेरेंट्स भी सोचते थे कि चलो अब ये पढ़ के क्या करेंगे, कुछ छोटा मोटा काम करके पैसा घर में आएगा। मनी के लिए वो बोलते थे क्या पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है। ओके, बस छोटे थे तो चलो ठीक है कि पढ़ लिया, चलो बैठे रहना यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा कि चलो पढ़ लिया, बैठ के कुछ सीख लिया। जैसे वो बच्चे बड़े हो जाते थे तो गरीब पुअर पीपल के पेरेंट्स को था कि चलो बस अब ये कमाएं, ओके, पढ़ना के क्या करना है। सो many reasons were there. See below that you can see Sri Aurobindo Ghosh in a speech delivered on January 15, 1908 in Bombay. Aurobindo Ghosh stated that the goal of national education was to awaken the spirit of nationality among the students. This required a contemplation of the heroic deeds of our ancestors. मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स इतनी हीरोइक डीड्स करके गए हैं तो आने वाली जनरेशन भी कुछ उन्हीं के रास्ते पे चले। The education should be imparted in the vernacular as to reach the largest number of people. Vernacular सब में, मेल फीमेल सब में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एडुकेशन को सीखे, समझे, पढ़े। Aurobindo Ghosh emphasized that although the students should remain connected to their own roots, they should also take the fullest advantage of modern scientific discoveries and Western countries experiments in popular governments. Moreover, the students should also learn some useful crafts so that they could be able to find some moderately remunerative employment after leaving their schools. उन्होंने कहा कि बच्चों को इतना सब कुछ तो आना चाहिए कि जब वो अगर स्कूल छोड़ दे तो उन्हें कुछ तो किसी चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुछ कर सके वो अपनी लाइफ में, करके कमा सके। ओके, जैसे आज के टाइम पे है बच्चे पढ़ लेके, आज का टाइम तो खैर अलग है, डिग्री हासिल हो जाती है, अच्छे बच्चों को तो स्कूल कॉलेज में से रिप्लेसमेंट मिल जाता है जॉब के लिए। सो बहुत फ़र्क है। लेकिन पहले टाइम पे भी चलो, पहले टाइम में वो नहीं था, पर फिर भी जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं उनको एडवांटेज मिले कि वो मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज, वेस्टर्न एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ें, सुने, जानकारी हासिल करें ताकि वो कुछ कर सके आगे। उनका श्री अरविंदो घोष का ये मानना था। Okay, then the agenda for a national education. British officials were not the only people thinking about education in India. From the early 19th century, many thinkers, जितने बड़े-बड़े renowned विद्वान थे, knowledgeable people थे from different parts of India, began to talk of the need of a wider spread of education, especially in India. Impressed with the developments in Europe, some Indians felt that Western education would help moderate India. मतलब कि उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जो इंडिया को सिविलाइज्ड बना सकता है, एडुकेटेड कर सकता है। तो उन्होंने दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एडुकेशन। You will read about some of the efforts in the chapter 9. There were other Indians, however, who reacted against Western education. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two such individuals कि जो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे। ब्रिटिशर्स तो कर रहे थे लेकिन they were against this. मतलब उनका कहना था कि इंग्लिश एजुकेशन अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम और ज़्यादा उनके गुलाम बन जाएंगे, has enslaved her, और ज़्यादा उनके गुलाम बन जाएंगे हम। Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of India.
जो पढ़ लिख जाएगा उसे सुपीरियर कहेंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसको इंफीरियर कहेंगे। तो वो इंडियंस के बीच में ही ये कॉम्प्लेक्स लाना चाहते थे इंफीरियर सुपीरियर का। इसलिए महात्मा गांधी ने बोला कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है विल क्रिएट अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। वो फिर हमारे इंडिया में वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही सुपीरियर मानेंगे, जो यहाँ के फिर कल्चर्स हैं उनको ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। There was poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It enslaved Indians. It cast an evil spell on them. महात्मा गांधी बहुत खिलाफ थे इंग्लिश एजुकेशन के। उन्होंने कहा ये अगर हो आया तो फिर तो सब कुछ ही ओवर हो जाएगा। Okay, that is Mahatma Gandhi. Indians educated in these institutions began admiring British rule. और अगर इंडियंस भी जो पढ़ लिख जाएंगे फिर वो ब्रिटिश के गुलाम हो जाएंगे, वो एडमायर करेंगे ब्रिटिशर्स को। महात्मा गांधी wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. Okay, an education that could help Indians रिकवर। महात्मा गांधी बोलते थे कि ऐसा एजुकेशन होना चाहिए दैट कुड हेल्प, जो अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर हम इन ब्रिटिश एजुकेशन बनेंगे तो हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, कोई डिग्निटी, हम उनके गुलाम हो जाएंगे। और अगर हम अपनी एजुकेशन करेंगे तो हमारी खुद की डिग्निटी होगी, खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक पहचान होगी। During the national movement, he urged students to leave education institutions in order to show to the British that Indians were no longer, मतलब जितना उनका ब्रिटिशर्स का कहना मानते जाएंगे, ब्रिटिशर्स तो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे, ये करना है वो करना है, वो यूनिटी होने ही नहीं देना चाहते थे इंडियंस में। और कुछ ना कुछ कभी न्यू एजुकेशन ले आए, कभी कोई स्कीम ले आए, कभी कोई पॉलिसी ले आए, ताकि वो चाहते थे ब्रिटिश इंडियंस हमेशा उनके एनस्लेव ले, हमेशा उनके गुलाम रहे। Mahatma Gandhi strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching, medium of कि इंडियन लैंग्वेजेस जो है हमारी, वो भी हमारे टीचिंग के अंदर शामिल होनी चाहिए। हमारे एंसेस्टर्स पुरानी जो हमारी है उसे हमें छोड़ना नहीं है। एडुकेशन इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में एडुकेशन लेंगे तो इंडियंस अपाहिज हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे ब्रिटिशर्स के। Education in English crippled Indians, distanced them from their own social surroundings and made them strangers in their own lands. Obvious है, अगर हम लोग ने ब्रिटिशर्स के इंग्लिश एजुकेशन को सीख ले तो हम अपने ही देश में स्ट्रेंजर हो जाएंगे। हमारा रवैया, हमारा कल्चर, हर एक चीज़ हमारा बदल जाएगा, हमारी कोई पहचान नहीं होगी, हम हमेशा के लिए ब्रिटिशर्स के गुलाम हो जाएंगे। महात्मा गांधी strongly felt, okay, that is education in English crippled Indians, distanced them from their own social surroundings and made them strangers in their own land. Speaking a foreign tongue, despising local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. Speaking a foreign tongue, despising local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. यानी हम जैसे हमें अगर आज हमारे इंडियन में हम कोई भी अच्छी बातें पूरे ग्रुप को बैठकर समझा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा कल्चर है। किसी को पूरी राह पे नहीं चलने देना, अच्छी बातें सिखाना हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर है। हम कहीं भी खड़े होते ना आज तो हम मास को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, पर इंग्लिश ऐसा नहीं, इंग्लिश एजुकेशन हासिल करके आप ऐसा नहीं कर सकते हो।
क्योंकि वो लोग कभी भी सही, वो हमेशा गलत ही एडवाइस, खुद भी गलती करते हैं और मास को भी गलती सिखाएंगे। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी said focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbooks rather than the live experience and practical knowledge ब्रिटिशर्स के पास नहीं है, जो हिंदुस्तानियों के पास है। He argued that education ought to develop a person's mind and soul. Literacy or simply learning to read and write, कि सिर्फ किताबी कीड़ों के जैसे बुक को पढ़ना, कई है ना पोपट खाली बुक को पढ़ना, उनको एक्स्ट्रा कोई नॉलेज नहीं है। सो ये ब्रिटिशर्स यही थे ना, सिर्फ किताबी बुक्स को ही बस ये बुक पढ़ लिया, वो बुक पढ़ लिया। He argued that education ought to develop a person's mind and soul. Literacy or simply learning to read and write. पढ़ो, सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए मत पढ़ो। गांधी जी का कहना, अपनी एक पहचान बनाओ, एक फिजिकल डेवलपमेंट हो आपका, आप किसी के सामने खड़े होकर कुछ बात कर सकते हो, किसी टॉपिक के बारे में कुछ बोल पाओ। दैट इज द रियल एजुकेशन। पढ़ना लिखना तो क्या हर कोई कर रहा है, तो हर कोई कर भी रहा है, करता था। People had to work with their hands, learn a craft and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. इससे आप जितना प्रैक्टिकल कोई चीज देखोगे, करोगे हाथ से, उतना ही आपका माइंड डेवलप होगा और आप में बहुत ज्यादा कैपेसिटी होगी उसको समझने की, टू अंडरस्टैंड, उसको करने की, किसी को समझाने की, आपके पास वो कैपेसिटी होगी। ओके, सो उनका कहना था कि सिर्फ लिखना पढ़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हर कोई करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, पर नॉलेज, किसी के प्रैक्टिकली को नॉलेज को हासिल करना, उसे करना, लोगों को दिखाना, उसके बारे में बोलना, एक्स्ट्रा नॉलेज, वो पढ़ाई है असली एजुकेशन। अपनी पहचान, एक फिजिकल डेवलपमेंट। सो यू कैन सी द पिक, Mahatma Gandhi along with Kasturba Gandhi sitting with Rabindranath Tagore and a group of girls at Shanti Niketan in 1940. So that was English education has enslaved us. Okay, that was page number 89. So students, please do read this lesson. In my next class, I will continue from page 90 of your text. And do read this lesson. बहुत ही अच्छा beautiful lesson है ये. Civilizing the native and educating the nation. Okay, in my next class, I will continue from page number 90. So with this, I have wrapped up my class here. Thank you.